सर आज कुछ लोग बोलते हैं इसको कुसंस्कार, हमारा पूर्वजों का जो सारा कीर्तिमान जो आविष्कार किया इसको कुसंस्कार मानते हैं। सर विश्व में जब कोई सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, आधुनिक यूरोप और अमेरिका के पूर्वजों ने जब अरण्य में अपने को नीले रंग में रंजित करके विचरण करते थे, भाषा भाव में संकेत के द्वारा भाव विनिमय करते थे, कभी कभी खाद्याभाव के कारण नरमांस भी खा जाते थे। सभ्यता का उस उषा काल में जिसका भेद करने में दंत कथा भी असमर्थ है, इतिहास तो नहीं है, उस समय में हमारा देश में एक चमत्कार सभ्यता संपन्न संस्कृति संपन्न राष्ट्र का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सारा विश्व में ज्ञानालोक वितरण करने का स्पर्धा पोषण करते हुए कृणुंतो विश्वमानव का उद्घोष में विश्व का गगन को गुंजायमान किया था। हम उनका स्पर्धी उत्तरदायी थे। कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, समस्त विषयों में जिन्होंने विश्व का गुरु पद में आसीन थे, उस राष्ट्र का हम स्पर्धी उत्तरदायी है। सर हमारा देश में कभी नया विचारों का विरोध नहीं किया गया, हमने बराबर नित्य सत्य का अनुसंधान को प्रेरित किया है। ये सारंगी जी आप समय। सर मैं तो थोड़ा सा आरंभ ही किया है, मेरा बारी पहले था, 2-3 फिर टर्न हुआ, फिर मेरा नाम आया। सर व्हाट इज साइंस? सर द प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन इन व्हिच वी लिव इन is the product of a particular discipline of human mind known as modern science. And what is science? Sir, science can be broadly divided into two different parts. First is pure science, then is applied science. And pure science is nothing but a pursuit, a search after truth. A search after unbiased, unprejudiced, free from all dogmas. Search after truth of nature. And applied science is an invention developed after these findings of the search after truth. Sir, so Chandrayaan is also an invention developed after these findings of the truth of pure science. Sir, now I can say that India has developed such truths ages ago which modern science may take ages to rediscover. हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किया, इसमें यह विराट पुरुष का आविष्कार हुआ। चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य जायत। The vastness and the oneness of the universe is the unique discovery of our sages ages ago. Sir, I would remember one incident. A great scientist, a Nobel laureate in physics, an American physicist, Dr. John Hobson, he wrote in a book that Swami Vivekananda posed a challenge to modern science when he asked, can you equate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. While explaining the philosophy of Sakya and Vedanta, Vivekananda told American scientists that your science is incomplete. Since your investigation stopped on 2 points, you could not discover the unity of human experience. Your knowledge, your experience could not proceed further. That is energy and mass. You could not unify them. But he explained how our sages ages ago discovered this unity in cosmic intelligence. From lowest atom to the highest Brahman, how the entire process ran, Vivekananda explained it very scientifically. Referring to this incident, John Hobson told that. And this truth was discovered that energy and mass are two different aspects of the particular, of a single truth discovered by Albert Einstein after passing 3 years of passing away of Swami Vivekananda. सर इन सब विषयों में सपोज शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में, तो गणित का कितनी असहाय अवस्था होता, रसायन विद्या का, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, संगीत शास्त्र हो, कणाद मुनि का अणुशास्त्र हो, चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, ये सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार भारत में है। सर संपूर्ण भूमंडल में भारत का सम्मान बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी के कारण। कुछ लोग कहते हैं हम तो वैज्ञानिकों को सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी को क्यों? प्रताप सारंगी जी, एक मिनट, इट्स वेरी, एक मिनट, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, बट टाइम डजंट परमिट, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट कंसर्न, काइंडली कंक्लूड। सर वी फुली अप्रिशिएट, but at the same time doesn't, because 24 more speakers and the minister has to respond. Sir, kindly cooperate with the chair. Sir, हमारे देश में
सम्मान ऐसा बढ़ा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के प्रेरणा में कोविड वैक्सीन आविष्कार किया और कोविड वैक्सीन को मोदी जी ने सारा विश्व में वितरित किया। कुछ लोग कहते हैं विश्व में क्यों देते हो, हमारे देश में देते हो। सर इस युग है दुनिया का एक्सपेंशन का युग है। विवेकानंद कहते हैं अनसेल्फिश इज लाइफ, सेल्फिशनेस इज डेथ। हेल्पिंग अदर्स इज लाइफ, नॉट हेल्पिंग अदर्स इज डेथ। Strength is life, weakness is death. India was weak, nobody respected her. India became strong, America respected her, Australia respected, the world respect. सर चंद्रयान मिशन में हमारी सफलता, थैंक यू, ये हमारा विस्तार का, हमारा शक्ति का नमूना है। और माननीय मोदी जी ने घोषणा किया कि ये हमारी ये सफलता सारा विश्व का ज्ञान भंडार को समृद्ध करेगा, न केवल हमारा देश का मोनोपोली का विषय होगा। सर ट्रस्ट द इटर्नल सनातन धर्म, जिसको आज कुछ लोग विरोध करते हैं, ये अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, बोलते हैं सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक दो, ये डेंगू, ये मलेरिया, ये HIV। सर हम इसको सहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा धर्म सहनशीलता का वैशिष्ट्य हमें देता है। बाकी कुछ धर्मों के बारे में बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा स्वामी विवेकानंद ने घोषणा किया कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन व्हिच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ एंड ऑफ ऑल द नेशंस अराउंड। सर we take pity on them, we take pity on their knowledge. Those who say we are separate, we belong to Ravana race. Sir, Ravana was an Arya Santan, son of Vishrava Rishi. He was accepted as the Purohita by Ramachandra in Setu and the Pratishtha. They do not know the history of the nation. The whole nation is one. भगवान व्यासदेव वेदों का संकलन किया, अष्टादश महापुराण का रचना किया और व्यास सूत्र वेदांत सूत्र का रचना किया, श्रीमद् भागवत का रचना किया, श्रीमद् महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का रचना किया, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता को संयोजित किया। सर भगवान व्यासदेव का माता एक धीवर कन्या ट्राइबल लेडी और उनका पिता ब्राह्मण पराशर मुनि। इसलिए वेदों के ऊपर ब्राह्मणों का जितना अधिकार है, वनवासियों का भी उतना अधिकार है। अति प्राचीन काल से वंशगत सम्मिश्रण हुआ है। सर मैं कहना चाहता हूं, ये जातिगत विद्वेष फैला करके भारत को खंडित करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रघातक है। सर ये अपना ज्ञान का दारिद्र्य के कारण अपना अत्याचार को दूसरों के ऊपर स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन धर्म अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, इसको विध्वंस कोई कर नहीं सकता है। और हमारा धर्मी सारा विश्व को स्वीकार करता है। सारा विश्व का अत्याचारित समुदाय का आश्रय स्थल है सनातन धर्म, यह भारत भूमि। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लक्ष्य एक है, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। यह है हिंदू संस्कृति, है भारतीय संस्कृति। सारा विश्व का हमने समादर किया। सर trust the eternal Sanatan Dharma propounded by our sages and gurus guide us to realize, appreciate and acknowledge the harmonious blend of ancient wisdom and modern innovation. Chandrayaan-3's success stands as a testament to humanity's unceasing quest to reach the unreached, uncover the uncovered, the unknown, bridging the realm of old and new, ancient and modern, and embracing the moon's wisdom that has inspired generations both past and present. सारा देश, सारा विश्व इसके लिए गर्वित होता है। कुछ लोग इधर गर्व नहीं कर सकते हैं। सर इनको कुछ बीमारी हुआ है, जो भारत का गौरव में गर्व अनुभव नहीं करते हैं, जो कहते हैं वी हैव कंसीव्ड द आइडिया ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बट दे कुड नॉट डू। They have conceived the idea of women reservation bill that they could not do. They could not make delivery. They conceived the idea. It passed away. We conceived, we furnished, and we delivered. So that is the credit of Manyava Narendra Modi ji. With this I conclude. Z News.